Good morning, students. Hope you all are fine. Dear students, yesterday we discussed about different type of reproductive patterns which are given in your chapter reproduction in animals. So today we are dealing this particular chapter further. So first of all, I am going to share with you today's learning outcomes. After the completion of the topic, the students will be able to draw the well-labeled diagram of male and female reproductive system. Students are able to describe the specific features of various parts of the male and the female reproductive system, and at last, students are able to differentiate the developing stages after fertilization, that is, embryo, fetus, and infant. So, dear students, this is the simple diagram of the male and female reproductive system. If you are able to see the diagram here, the male reproductive organs which are oval in shape, that are called the testes having duct, okay, testes having duct, and the name of the duct are called vas deferens. Okay, vas deferens open into here. There is a common duct that is called urethra, and the penis is also there, and there are two glands. The first is called the prostate and the second one is called the seminal vesicle. So this is a simple diagram. Now I am going to discuss with you the functions of the various parts of the human male reproductive system. The first part is called the pair of testes. So testes are oval in shape, and you already know the testes are present in a pouch-like structure. In case of human male, the testes are not present inside the body, but they are present outside the body in a pouch-like structure, and the name of the structure is called the scrotum. Okay, and what is the main function of testes? They are producing the male gamete, that is basically called sperm. The second part of the male reproductive system is called the sperm duct or vas deferens. When the testes are going to produce the sperm, okay, then these are collected by the sperm duct. The third part is basically called the urethra. So urethra क्या है? Urethra is a common duct, okay, which is a common duct basically which collect the which is the common passage for the urine and the sperm basically, and urethra is covered by a muscular structure that is basically called a penis, and penis is going to conduct urine as well as the semen. So what is semen? याद रखिएगा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपका कि इन केस ऑफ मेल देर आर टू ग्लैंड, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स. सो सीमेन क्या है आपका कि टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करेंगी. जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो उसको नरिशमेंट देने का काम करेगा या लिक्विड मीडियम देने का काम करेगा आपका, और सेमिनल वेसिकल कॉमन, इन दोनों का फंक्शन ये है. तो जो कॉमन सिक्रीशंस मेल की बाहर आती हैं उनको सीमेन का नाम दिया जाता है. ठीक है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए. नाउ I am going to discuss here the various parts of the human male gamete. Human male gamete have generally three parts. Sperm generally have three parts. The first is called the head, the second one is called the middle piece, and the third one is called tail. तो याद रखिएगा यहाँ पे head, जो head है, head is going to produce enzymes. हेड का मेनली फंक्शन क्या है? जब भी देखो एग के साथ फर्टिलाइजेशन होगी तो मेल गैमीट का हेड पोर्शन ही एग के कॉन्टैक्ट में आएगा, और जब फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा? जो टिप ऑफ द हेड है दैट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस सम एंजाइम्स जो हेल्प करेगा टू पेनिट्रेट इनटू द फीमेल ओवम, तो ताकि वो फीमेल के एग के अंदर एंटर कर सके फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो याद रखिएगा, बहुत बार आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द टिप ऑफ द हेड. तो आपने बताना है कि जो टिप ऑफ द हेड है दैट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस सम एंजाइम्स. ठीक है, और वो एंजाइम्स क्या करेंगे? दैट हेल्प टू पेनिट्रेट इनटू द फीमेल ओवम फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. मिडल पीस की बात करें तो मिडल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और यू ऑलरेडी नो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देने का काम करेंगे. तो याद रखिएगा, मूवमेंट में जितनी भी एनर्जी लगती है उसको देने का काम आपके माइटोकॉन्ड्रिया करेंगे, एंड दैट आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द मिडल पीस. एंड टेल जो होती है आपकी, वो आपके लिक्विड मीडियम, जिसे सीमेन का नाम दिया जाता है, तो स्पर्म आपके इजीली मूव कर सकें तो टेल जो होती है उसको स्विमिंग में वर्कआउट करने का काम करेगी. ठीक है, और याद रखिएगा ह्यूमन स्पर्म्स का नंबर जो होता है दैट इज़ इन मिलियंस, एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक में नॉर्मल आई से हम उनको देख नहीं सकते, दे आर ओनली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप.
Now I am going to deal with the female reproductive system. तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड ओवरीज. ठीक है, ओवरीज जो हैं, नेचुरली बात है, ओवरीज से जो एग बनेगा उसको इकट्ठा करने का काम कौन करेगी? फैलोपियन ट्यूब. द अनदर नेम ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड ओविडक्ट. आगे जा करके एक पियर शेप ऑर्गन होता है जहाँ पे बेबी की डेवलपमेंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड यूटेरस. वेजिना बर्थ कैनाल है, और यूट्रस और वेजिना के बीच में एक नैरो ओपनिंग होती है जिसे हम सर्विक्स का नाम देते हैं. तो दीज आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Now we are going to discuss with you the functions of the various parts of the human female reproductive system. The first part is basically called ovary. ओवरी के क्या फंक्शन होते हैं? ओवरी का सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या है कि ओवरी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट दैट इज़ कॉल्ड एग और ओवम. ठीक है, और दूसरा फंक्शन ओवरी का क्या है कि ओवरी बहुत सारे हार्मोन भी प्रोड्यूस करेगी, और उन हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है? एग और ओवम प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जो भी आपके हार्मोन्स बनते हैं दैट आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी. ओवरी के बाद ओविडक्ट. द अदर नेम ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब. तो याद रखिएगा, जो फर्टिलाइजेशन होती है, यानी जो स्पर्म और एग आपस में फ्यूज़ करते हैं, तो वो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? दैट इज़ गोइंग टू बी टेक प्लेस इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट. याद रखिएगा, जो फर्टिलाइजेशन होती है जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज़ करते हैं, तो वो कहाँ पे होती है? इनिशियल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओविडक्ट का एक और फंक्शन है, इट कलेक्ट द एग्स फ्रॉम द ओवरी. यूटेरस. यूटेरस मैंने आपको बता दिया, एक आपका मसल्स का है, पियर शेप ऑर्गन होता है जहाँ पे बेबी की इम्प्लांटेशन, बेबी की डेवलपमेंट, इम्प्लांटेशन मीन बेबी वहाँ पे ज्वाइन करेगा, जो एम्ब्रियो है वहाँ पे ज्वाइन करेगा, एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी भी यहीं पे होती है. और वेजिना जो होती है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द बर्थ कैनाल, जहाँ से बेबी की बर्थ होती है. ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है आपका फर्टिलाइजेशन. ठीक है, फर्टिलाइजेशन, इफ़ यू रिकॉल द डेफिनेशन, फर्टिलाइजेशन मीन यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. तो यहाँ पे देखो, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, फादर आल्सो हैव 46 क्रोमोसोम, मदर आल्सो हैव 46 क्रोमोसोम. तो याद रखिएगा, मियोसिस एक सेल डिवीज़न है. सेल डिवीज़न मीन जब नए सेल बनते हैं उस प्रोसेस को हम सेल डिवीज़न बोलते हैं. तो मियोसिस इज़ द टाइप ऑफ सेल डिवीज़न. तो याद रखिएगा, जब आपके गैमीट बनते हैं, यानी मेल और फीमेल में जब गैमीट बनते हैं, तो याद रखिएगा जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है. यानी बट आर द फीमेल गैमीट हेयर दैट इज़ एग और ओवम. तो 46 में का हाफ कितना होता है? 23 क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर. और बट आर द मेल गैमीट दैट इज़ स्पर्म. ठीक है, एंड बट इज हाफ ऑफ 46 23. तो देखो 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम द मदर एंड 23 क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर, ठीक है, आर गोइंग टू बी देयर. जब आपके फ्यूज़न ऑफ एग और स्पर्म होता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और जाइगोट बनेगा. और जाइगोट में दोबारा से देखो 23 फादर के क्रोमोसोम आ गए, 23 मदर के क्रोमोसोम आ गए, तो दोबारा से नंबर कितना हो जाता है आपका? 46 हो जाता है. ठीक है, और याद रखिएगा, गैमीट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस आपकी वर्कआउट करती है, सेल डिवीज़न. और जब डेवलपमेंट होती है जाइगोट की, उसके लिए माइटोसिस, दैट इज़ आल्सो द टाइप ऑफ सेल डिवीज़न. अब ये जाइगोट आपका एम्ब्रियो में, फीटस में, इन्फेंट में डेवलप होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जब देखो फर्टिलाइजेशन होती है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि व्हाई द सिबलिंग्स हैव कॉमन फीचर्स. सिबलिंग्स होते हैं भाई बहन. देखा होगा कि बहुत सारे फीचर्स हमारे एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं. या एक क्वेश्चन आ जाए कि वाई एवर सम ऑफ द बॉडी फीचर रिजेंबलिंग विद द फादर एंड मदर. कई फीचर फादर से मैच करते हैं, कई फीचर मदर से मैच करते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, ये सिंपल डायग्राम है फर्टिलाइजेशन की. फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म होता है उसमें स्पर्म न्यूक्लियस होता है, और एग और ओवम के अंदर एग न्यूक्लियस होता है. ठीक है, यानी स्पर्म न्यूक्लियस इज कमिंग फ्रॉम द फादर एंड एग न्यूक्लियस इज कमिंग फ्रॉम द मदर. और जाइगोट में देखो पहले क्या होते हैं? 2 न्यूक्लियस हैं, एक आपका स्पर्म न्यूक्लियस है और एक आपका एग न्यूक्लियस है, और ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तभी जाइगोट बनेंगे. तो देखो क्या है, जितने भी फीचर स्पर्म न्यूक्लियस में होंगे वो हमारी बॉडी में फादर से आएंगे, और जितने भी फीचर आपके एग न्यूक्लियस से आएंगे वो आपके मदर से आएंगे. ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के दौरान हमारी बॉडी में फादर का डीएनए भी और मदर का डीएनए भी दोनों इक्वली शेयर होता है, एंड दैट इज़ द रीज़न द सम ऑफ द फीचर्स आर रिजेंबलिंग विद द फादर एंड सम ऑफ द फीचर्स आर रिजेंबलिंग विद द मदर. सिमिलरली हमारे सिबलिंग्स में भी सेम डीएनए आया है,
जो हमारे अंदर डीएनए है वही हमारे पेरेंट्स का डीएनए हमारे सिबलिंग्स भाई बहन में गया है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो सिबलिंग्स होते हैं उनमें भी बहुत सारे फीचर्स कॉमन देखने को मिलते हैं। आगे है आपका यहाँ पे डिफरेंस है आपका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द जाइगोट, ठीक है, एम्ब्रियो। जाइगोट आपको पता है सिंगल सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब एम्ब्रियो और फीटस क्या है, जैसे ही जाइगोट बनता है, अब जो जाइगोट है वो देखो दैट डिवाइड अगेन एंड अगेन। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डे 1 डे 2 देखो जाइगोट कैसे डिवाइड करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही आपका जाइगोट बनेगा, अब जाइगोट की डेवलपमेंट होनी है, तो जो जाइगोट है दैट विल डिवाइड अगेन एंड इट विल फॉर्म ए क्लस्टर ऑफ सेल, एंड दैट क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड एम्ब्रियो, ठीक है। अब देखो जो नीचे वाला डायग्राम है, ये वाला नीचे वाला, दिस इज़ ए फीटस। फीटस क्या होता है, जब एम्ब्रियो बार बार डिवाइड करेगा तो आफ्टर सम टाइम और 2 और 3 मंथ्स, ठीक है, उसके अंदर बॉडी पार्ट्स डिवेलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक हेड, आईज, हैंड, लेग्स एटसेट्रा, एंड दैट द स्टेज ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो वेयर द बॉडी ऑर्गन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस, and the last one is called infant. So what is infant? The newborn baby is called infant. Okay, so the newborn baby is called infant. So dear students, this is the whole about today lecture. So I hope so we are able to cover all the learning outcomes. ठीक है, we are already covered the diagrams of the male and the female reproductive system. We already described the various parts of the male and female reproductive system and their functions, and we are discussing at last differences between the zygote, embryo, fetus and infant. Rest chapter we are going to deal in the next lecture. Till then, take care. God bless you all.